Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment Literature Window. And as you know that in this literature window you get chapters from CBSE class 10th literature book that is given for English. So this time I have brought you a chapter from First Flight book, and the chapter name is From the Diary of Anne Frank. This is first part. I am going to give you introduction of the chapter, and after this we will go ahead with the text. Okay, so dear students, those who are watching this video, I must tell you certain thing about the chapter and certain facts about this, why you have been given this. आपको ये पढ़ने के लिए क्यों दिया गया, ये सारी बातें मैं आपको पहले बता दूं, तब हम टेक्स्ट पे आएंगे. सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग इज देयर, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ डायरी. दिस इज नथिंग बट an extract from a diary, and the diary has been written by Anne Frank, and the diary's actual name is A Diary of a Young Girl, okay, which was written during Second World War and written by a 14 years old girl, a Jewish girl. Okay, so moving ahead, we have, this is the photo of the writer Anne Frank who wrote her diary, and this is maybe for the first time that someone's personal diary became public. डायरी इज़ ऑलवेज पर्सनल. ओके, नोबडी वांट दैट समबडी शुड रीड. कोई नहीं चाहता है कि किसी की डायरी कोई पढ़े, लेकिन उस डायरी को पब्लिक किया गया. देयर मस्ट बी सर्टेन रीजन, वी विल गेट टू नो इन दिस चैप्टर. ओके, and this is the photo of that Anne Frank, and there here we get one account in which Anne Frank tells that I want always to be like this, कि मैं हमेशा ऐसे ही दिखना चाहती हूँ. एंड देयर में भी हो सकता है फ्यूचर में कभी मुझे हॉलीवुड भी जाने का मौका मिलेगा. लाइक दिस शी टेल्स. Before you read, we will see first, and here we get Anneliese Mary Anne Frank. Full name of Anne Frank was Anneliese Mary Anne Frank. Okay, she was born on 12th June 1929 and she died in 1945. There is no proper date given of her death. There is a reason behind this. There is a very big reason. ये आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए. Why date of death is not written? She was a German. And not only German, she was mainly a Jewish girl. Okay, now the question might be there, what is this Jewish? So if you people go to Israel, okay, Israel is a very famous country, smallest one but the strongest one, okay, that has power to defeat all its neighbors at once only. In Israel, generally three communities are living. Okay, first we have that is called Christians. Then second one we get, okay, that is Jewish people, and the third one that is we have Muslims. Right, these three people are living in Israel. These Christians who follow Jesus Christ, Jewish who follow or who abide by the rules of Moses, Muslims, okay, who follow Prophet Muhammad. ये तीनों इज़राइल में रहते हैं. और इज़राइल की अगर मूल निवासी की बात करेंगे, the actual dwellers of Israel, तो दे आर nobody else but Jewish only. वहाँ के मूल निवासी जो है यहूदी लोग ही हैं. कह सकते हैं इज़राइल के रहने वालों को हम यहूदी कह सकते हैं. यू शुड नॉट फॉरगेट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ऑल्सो अ जेविश पर्सन. वो भी एक यहूदी ही थे. She was a born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. See, this diary was mainly written at the time of Second World War, when Anne Frank's family and 4 more friends, means 4 more people, they were hiding in Amsterdam. There is a place in Netherlands, in Amsterdam. They were all hiding. Okay, why they were hiding? Because of the fear of Nazi people and because of Hitler. Okay, when Hitler became Chancellor of Germany, he passed a decree. He passed an order that all the Jewish people, okay, they should be killed as soon as possible. And this was the reason that a number of people migrated from Germany, or they locked themselves in certain places till the end of Second World War. Or there were some people, there were many people, they were all killed. So if you talk about that time, so something 70 lakh people were killed by Hitler. Okay, now this family spent a lot of time in lockdown. See, हम लोगों ने we have spent only something 6 months only in lockdown,
एंड नो डाउट हम लोगों ने लॉकडाउन में 6 महीने गुजारे हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़े बहुत बाहर निकलने की, छत पे जाने की छूट थी, अपने ज़रूरत की सामान लाने की छूट थी। लेकिन जस्ट थिंक ऑफ दैट लॉकडाउन, आप उस लॉकडाउन के बारे में सोचे जिसमें खिड़की तक खोलने की परमिशन नहीं थी। मीन्स इफ़ यू ओपन द विंडो समबडी विल नो दैट यू आर हाइडिंग हेयर एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू मे बी किल्ड, और अगले ही पल जो है आप मारे भी जा सकते हैं। दिस वॉज द चांसेस, ओके, प्रोबेबल चांसेस देयर, एंड दैट वाज द रीज़न कि इन सबको अच्छे से छुप करके रहना होता था। दे वर हाइडिंग इन द नीदरलैंड्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेंड पावर इन जर्मनी, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. See exactly what happened. They were living in Germany only, but they moved to Amsterdam in Netherlands. ये लोग नीदरलैंड में आ गए थे जब हिटलर जर्मनी में अपने पावर में आया। लेकिन जब हिटलर जर्मनी में पावर में आ गया तो ही स्टार्टेड एक्सटेंडिंग हिज एरिया, okay, step by step. And what happened, the people who migrated from Germany to Netherlands, okay, later they got to know that now Netherlands is also occupied by Hitler. Now we are not in Netherlands, we are in Germany, and because of that now they got the same problem that we were about to be killed in Germany, now here also we will be killed. हम लोग जर्मनी में मार दिए जाते, अब यहाँ भी मार दिए जाएंगे। तो दे वर ट्रैप्ड एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज। और ये क्यों किया गया था, तो यहूदी लोगों की जनसंख्या ना बढ़े, इस बात को लेकर के उनको सबको एक एक करके मारा जा रहा था। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। फाइनली उस से बचने के लिए, मतलब प्राण गंवाने से बचने के लिए पूरे परिवार जो है, पूरा होल फैमिली 1942 के जुलाई में ऑटो फ्रैंक जो एने फ्रैंक के फादर थे उनके ऑफिस में शरण लिया, ऑफिस में खुद को बाहर से लॉक कर दिया। किसी को ये मालूम नहीं चला कि इस ऑफिस में कोई रह रहा है, और मतलब दिन भर में कोई एक ही आदमी निकलता था उन लोगों के खाने का इंतजाम करने के लिए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, यू कैन अंडरस्टैंड, हम लोगों ने 6 महीने के लॉकडाउन गुजारे हैं, ठीक है, और दे स्पेंड समथिंग 2 years इन लॉकडाउन, ओके। इन लोगों ने 2 साल की हाइडिंग गुजारी। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। और एक समय ऐसा भी आया, देयर केम अ टाइम व्हेन द ग्रुप वाज बिट्रेड, जब ग्रुप के साथ विश्वासघात किया, किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया, और इन सब को देन दे वर ऑल टेकन टू द कंसंट्रेशन कैंप। माय डियर स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू हियर द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन कैंप, ओके। एट द टाइम ऑफ हिटलर, हिटलर डिड नॉट किल ऑल द पीपल विद बुलेट्स। हिटलर ने सब लोगों को गोलियों से नहीं मारा। दे हैड कैंप्स, उन लोगों ने कैंप बना कर रखे थे। कैंप में रूम्स होते थे, डब्बे जैसे, ट्रेन के कंपार्टमेंट जैसे। लोगों को पकड़ पकड़ के वहाँ लाते थे, और उस डब्बे में क्या करते, लोगों को एक बार बंद करते थे, और बंद करने के बाद दे यूज टू रिलीज अ गैस, ओके, पॉइजनस गैस। और उसी के साथ क्या होता था कि बहुत सारे लोग एक साथ बिना कम खर्चे में, कम से कम खर्चे में वो सब के सब मारे जाते थे। एंड दिस इज़ व्हाट वाज डन बाय हिटलर, और हिटलर के द्वारा ये काम बहुत धड़ल्ले से किया गया। एंड द सिचुएशन वाज दिस कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर में जूते चप्पलों का कुछ ऐसा बड़ा बड़ा ढेर लगता था, जूते चप्पलों का, और जो भी मतलब वो जो सामान लेकर के आते थे उन सारे सामानों का बड़ा बड़ा ढेर लगता था। एंड सारे डेड बॉडी को एक ही साथ जमा करके पेट्रोल से या किसी भी चीज़ से वो जला दिया करते थे। दैट वाज द सिचुएशन। तो इन लोगों ने खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग में छुपा लिया। नाउ वी हैव, और जब धोखा दिया गया तो इन लोगों को ले गया कंसंट्रेशन कैंप में, एंड एट दैट वेरी प्लेस एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन। और वहाँ पे उस कंसंट्रेशन कैंप में एने फ्रैंक की मौत हुई। किससे, तो टाइफस से, बीमारी से। इसलिए यहाँ पे आपको इसके डेट ऑफ डेथ नहीं दिया गया है, क्योंकि कैंप में ले जाने के बाद इसकी मृत्यु कब हुई ये किसी को मालूम नहीं हुआ। यू शुड नो दैट एने फ्रैंक की एक सिस्टर भी थी, और उस सिस्टर का भी जो है मार्गोट फ्रैंक, शी ऑल्सो डाइड विद द सेम डिजीज़। प्रॉब्लम वहाँ पे ये था कि किसी को कैंप में ले जाने के बाद जिस दिन ले जाया गया उसी दिन नहीं मारा जाएगा। पीपल्स लाइफ यूज टू बी लाइक पोल्ट्री फॉर्म चिकन्स। फॉर्म के मुर्गे के बराबर उनकी ज़िंदगी हो गई थी कि अगर फॉर्म में पड़े हुए हैं तो आपका भी समय आएगा, आप भी काटे जाओगे, आप भी मतलब मारे जाओगे। तो ये हाल था कि पीपल यूज़ टू वेट फॉर देयर टर्न, कि मैं आज लाया जाऊंगा तो आज मारा जाऊंगा, कल मारा जाऊंगा, या हो सकता है महीना भर भी गुजरे
तो इस पूरे दौरान में ऑब्वियस सी बात है, जिसको सामने मौत दिखती हो उसका प्राण आधा निकल चुका होता है, और वो बीमारी से या भूख से कैसे भी हो, लेकिन वो पहले ही मर जाता है अधिकतर। तो ये था एने फ्रैंक कुछ इस प्रकार से मरी। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर इंडेड। और इस पूरे फैमिली में से एक आदमी बचे थे, वो थे एने फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक। ये क्यों बचे थे? क्योंकि ये एम्स्टर्डम से भाग गए थे, इसलिए बच गए थे। और युद्ध होने के बाद ही गॉट बैक टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और जब वापस आए तो उनके एक फ्रेंड ने, वन ऑफ हिज फ्रेंड ही गेव हिम द डायरी, उनको डायरी दिया, कहा कि ये एक चीज़ है जो मुझे आपके बिल्डिंग से, आपके कमरे से मिला है और मैं आपको देना चाहता हूँ। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड। और देने के साथ ये कन्विंस किया कि ये जो है बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड है, आपकी बेटी ने लिखा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लिखा है जो शायद आपके काम आ सकता है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड। जब उसके फादर को मिला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया। इट वाज पब्लिश्ड विद एन इंग्लिश नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उसको इंग्लिश नाम दिया गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। डियर स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू द डायरी वॉज मेनली पब्लिश्ड इन डच लैंग्वेज। सबसे पहले ये डच लैंग्वेज में छापा गया था, उसके बाद डच के बाद इंग्लिश में, और इंग्लिश के बाद करीब अगले 60 लैंग्वेज में, इन समथिंग 60 लैंग्वेजेस इट वाज पब्लिश्ड। कोई 60 लैंग्वेज में ये छापा गया था। दिस वाज डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. You can understand, okay, 1942 से लेकर के 1944 तक का पूरा डिटेल इसमें मिलता है। 12 जून, रिमेंबर 12 जून इज़ हर बर्थडे। इसे बर्थडे को ये गिफ्ट में डायरी मिला था, 13th बर्थडे को। फ्रॉम दैट एवरी डे शी स्टार्टेड राइटिंग, और उसके बाद 1 अगस्त 1944 को लिखना बंद हो गया। हो सकता है 1 अगस्त या उसके आसपास, 1944 के आसपास ही इसे कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया होगा। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट बुक्स, तो इन द वर्ल्ड बुक्स, अमंग बुक्स, ओके, द फर्स्ट वन दैट इज रीड मोस्ट, दैट इज द बाइबल। सेकेंड वन वी फाइंड विलियम शेक्सपियर। ओके, third place can be given to the diary of young girl, or there is one more called Agatha Christie. There is one more writer, detective writer whose name is Agatha Christie from England. So these all people had been quite famous, and the Frank diary also got so much famous. Moving ahead, we are going to finish this segment at least. In next segment I will be starting your text. There has also been several films. इस डायरी पे कई सारी फिल्में ही बनी, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, नाटक भी बनाए गए, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, एक ओपेरा भी लिखा गया, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। और डायरी को ये एक्सप्लेन किया गया किस प्रकार से कि डायरी जो है किसी बच्चे का लिखा नहीं है, ये बहुत ही परिपक्व दिमाग जो सही डिसीजन ले सकता है, सोच सकता है, बहुत दिमाग रखने वाले बच्चे के द्वारा लिखा गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और इतना ही नहीं, ये डायरी हमें पढ़ने के लिए क्यों दिया गया? वाई वी हैव गॉट द डायरी? बिकॉज दिस इज़ द ओनली एविडेंस, ओके, दैट प्रोवाइड्स यू डिटेल्स दैट हाउ वाज द लाइफ ऑफ जेविश पीपल एट द टाइम ऑफ नाजी ऑक्यूपेशन इन जर्मनी। ओके, हाउ पीपल लिव्ड देयर, कैसे लोग रहे, ये बात जानने के लिए तभी मिलता है जब आप इस डायरी को पढ़ते हैं। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम। हॉलोकास्ट विक्टिम में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली, द ओनली पर्सन, दैट इज एने फ्रैंक। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। Moving ahead, before I finish the video, I must tell you, in this diary you will get only pages, 2 days pages of her diary. One page you will get that will be that starts from here only, and this will be of 12 June on her birthday when she got the diary that day. And after that you will get one more page which dates to Saturday 20 June, just 8 days more. उसी बर्थडे के 8 दिन बाद का आपको डिटेल मिल जाएगा, इन विच शी राइट्स अबाउट हर क्लास एंड अबाउट हर टीचर एंड ऑल द एक्टिविटी दैट शी डिड ड्यूरिंग हर स्कूलिंग. So this is the diary of Anne Frank that we have got the introduction. In the next video I will be giving you the remaining
text. We will go ahead with the text. So thanks for watching the video. This is just only first part, but next time I will be giving you the rest of the parts only. Till that, I bid thanks to all the people who are watching this chapter. Thank you. Share to more people so that they can also avail this explanation and they can also learn the chapter. That's all.